Hello children, this is Science class 6. Today we are going to start chapter number 2, Components of Food. Let us continue. In chapter 1, we made list of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. Children, first of all, I want to show you the map of India. See, many traditional tastes. We know that in India, in all these states, so many varieties of foods are there. Fine. So here it is given state-wise different food items they eat is given. Fine. Isn't it a very delicious map of India? Yes, children. Okay, let us continue. A meal could consist of a chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetables preparation of lady's finger. Yet another meat could be appam, fish curry and vegetable. तो ये जो हमें दिया है वो डिफरेंट फूड आइटम है. जैसे हम चपाती, दाल, ब्रिंजल करी ये सब कहें तो एक स्टेट का है, राइस, सांभर एंड वेजिटेबल दूसरे स्टेट का है. फाइन. सो दिस वे हर एक स्टेट की फूड के लिए अपनी अपनी वेराइटीज़ होती है. Now one activity is given. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें ऐसा दिया है कि हम ग्रेन भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, उसके साथ जो नॉन वेजिटेरियन पीपल है वो मीट भी खाते हैं, साथ में हम कर्ड लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं. सो ऑल दीज आर आइटम्स विच में इंक्लूडेड इन आवर फूड डिश. सो हियर इट इज़ वन टेबल इज़ गिवन 2.1. तो इसमें हमें कुछ फिलअप करना है. क्या करना है? Select food items you depicted on the map on chapter 1. Add some more meals to these lists and enter these in table 2.1. तो हमें कुछ आइटम्स ऐड भी करनी है, कुछ दी है, कुछ ऐड करनी है. सो वी हैव टू मेक अ टेबल. सी हियर आई हैव added one picture of this table. So what is given in the first one region is there. second column item of grain हम क्या क्या खाते हैं वो दिया है. then item of दाल और मीट खाते हैं, vegetable and others. तो ये सारी चीज़ें हमें fill-up करनी है. sometimes we may not really have all these variety in our meals. if we are traveling we may eat whatever is available on the way. it may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. तो मतलब जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है वो डिश हम खाते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर यही चीज़ खानी है. नो, देयर मस्ट बी सम रीज़न इन थ्रू दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? Yes, obviously. आप लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में पहले से पढ़ा है. Because our body needs every kind of nutrients to grow and to repair itself. So हमें हर एक चीज़ खानी चाहिए. कोई एक ही खाने की चीज़ है उसमें से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं. Okay. So here it is given in 2.1 that what do different food items contain. फूड आइटम में क्या क्या होता है? हम फूड तो खाते हैं लेकिन उससे हमें मिलता क्या है? उसमें से कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. Children, this we have learned in our first chapter, that is what it mean by ingredients. means जो dish
हम बनाते हैं उसमें रॉ मटेरियल के लिए जो जो चीज़ें हम डालते हैं उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. फाइन. एंड दैट वी मोस्ट ऑफ द आइटम्स वी गेट आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो जो ये इन सारे ingredients में से जो यूजेबल वैल्यूएबल थिंग्स हमें मिलती है तो इसे हम कहेंगे nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. So for that children, I show you one picture. See, here it is major nutrients of our food. So here it is given. ऊपर से हम स्टार्ट करें फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स है जिसमें वाटर और रफेज जो है वो डाइजेशन में हेल्पफुल है. फाइन. तो डाइजेशन क्या है वो भी हम धीरे धीरे जानेंगे कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं वो उसे डाइजेस्ट करना मतलब उसके यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स बॉडी यूटिलाइज करता है और जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो बॉडी से थ्रो कर देता है. सो दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन प्रोसेस. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. अब हमें ये पता तो चला कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, लेकिन क्या सारे खाने में ये सारी चीज़ें मिलेंगी? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. द टेस्ट फॉर presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. मीन्स हम जो खाना खा रहे हैं अगर वो रॉ है या कुक्ड है उसमें इन कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट्स ज़्यादा है, कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वो जानने के लिए हम सिंपल टेस्ट कर सकते हैं. इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो इसकी टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं. फाइन. लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. तो आगे एक टेबल दिया है 2.2 जिसमें ये है. हियर इट इज़ द टेबल. इसमें हम ये सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लें कि ये सारे टेस्ट क्या है. ओके. For carrying out this test, you will need solutions for iodine, copper sulfate and caustic soda. ये पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका फोटो. फाइन. सो ये है फर्स्ट वन इज़ गिवन आयोडीन सॉल्यूशन. सेकेंड वन ब्लू कलर का आप जो पाउडरी सब्सटेंस देखते हो दैट इज़ कॉल्ड कॉपर सल्फेट. और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दिया है, लिक्विड दिया है, दैट इज़ कॉस्टिक सोडा या इसे कहेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये तीन कंपोनेंट आपको ये आसानी से मिल सकते हैं जो केमिस्ट की शॉप पे. सो इस तीनों का यूज़ करके हम ये टेस्ट कर सकेंगे. ट्राई दी. ओके. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. टेस्ट ट्यूब मीन्स जो ग्लास की छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें हम ये मटेरियल डाल के उसके टेस्ट करेंगे. Try this test on cooked food items as well as raw materials. Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. तो ये जो टेस्ट करेंगे उसका जो हमें ऑब्जर्वेशन पता चलेगा उसे हमें टेबल 2.2 में स्टोर करना है. So now some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food item. मतलब आपके पास जो फूड आइटम अवेलेबल है उसका यूज़ करके हम ये टेस्ट कर सकते हैं. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. See children, हम जब भी कोई टेस्ट करते हैं
तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपोनेंट हमारे सामने हो तो उसका हमें टेस्ट करना नहीं है, हमें खाना नहीं है, बिकॉज इट मे हार्मफुल फॉर अस. If the required solutions are not available in the ready-made form, your teacher can prepare them as follows. तो यहाँ पे ये कैसे बनाया जाता है इसकी भी थोड़ी मेथड हमें दी गई है. ओके, let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट किस में से हमें मिलता है चिल्ड्रन? आपको पता है राइस है, वीट है, पोटैटो है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. तो starch है, sugar है, इसमें से हमें ये carbohydrate मिलेगा. Now how to do its test? Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. कोई भी चीज़ लो, या तो पल्सेस है या ऐसा कुछ लो, या कुक्ड राइस है वो हम ले सकते हैं, या सिर्फ पोटैटो को स्लाइस करके भी ले सकते हैं. पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. डाइल्यूट मीन्स उसमें थोड़ा पानी ऐड जब करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन में तो वो बन जाएगा डाइल्यूट. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. डिड इट टर्न ब्लू, ब्लैक? चलो मैं आपको पहले इसके लिए एक फ़ोटो दिखाऊँ. फाइन, हियर इट इज़. सी, पोटैटो की स्लाइस है और आयोडीन सॉल्यूशन. जब हम ड्रॉपर से पोटैटो के ऊपर ये ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका तो डार्क कलर, ब्लू ब्लैक जैसा कलर उसका दिखेगा. अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हुआ, दैट मीन्स दिस फूड आइटम कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट. फाइन, जो भी है कुक्ड राइस है तो उसमें भी ऐसा दिखेगा. ओके, सो ब्लू ब्लैक कलर अगर टर्न हुआ, व्हाट इट मीन्स? टेस्ट फॉर स्टार्च, मीन्स इसमें स्टार्च प्रेजेंट है. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. तो ये टेबल मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, इसमें हम फिल करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट एंटर किया है रो पोटैटो, तो स्टार्च प्रेजेंट में हमने यस लिखा है क्योंकि उसका कलर चेंज हुआ. नाउ हाउ टू डू टेस्ट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? पल्सीज में से, है ना. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. तो हम पल्सीज कोई भी हो ना, दाल कोई भी हो तो उसे क्रश करके ले सकते हैं, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके भी कर सकते हैं, या कुक्ड है तो भी ले सकते हैं. इफ़ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ ईट और पाउडर ईट. सॉलिड है ना तो उसे क्रश करना पड़ेगा और उसका पाउडर करना पड़ेगा या पेस्ट बनानी पड़ेगी. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ईट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. मतलब जो दाल हमने ली है उसमें पहले तो क्रश करो, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके उसका पेस्ट जैसा बनाओ. नाउ व्हाट टू डू? नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. caustic soda और copper sulfate दोनों उसमें टर्न बाय टर्न ऐड करना है. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of proteins in the food item. तो अगर इसका कलर वायोलेट चेंज हुआ, सी लाइक दिस. ओके, हमने पहले क्या किया? फूड सैंपल लिया, उसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ा उसका पेस्ट जैसा बनाया. देन आफ्टर वी एडेड कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा इन दिस टेस्ट ट्यूब. हमने जब वहाँ पे रखा तो उसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, मतलब पर्पल कलर का हो गया ना, दैट मीन्स इस फूड आइटम में प्रोटीन है. अगर उसका चेंज नहीं हुआ कलर, दैट मीन्स प्रोटीन
नहीं है. Got it children? So again these observation we have to add in our table. और ऐसे ही दूसरी अलग अलग फूड आइटम्स लेके इसको हम टेस्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट टेस्ट फॉर फैट. फैट मीन्स ऑयली सब्सटेंस है ना. फैट कहाँ से मिलता है? घी, बटर, ऑयल, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, उसमें से हमें फैट मिलता है. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश ईट. हमें पेपर में थोड़ा ये फूड आइटम लेनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल पीनट्स है ना. पीनट्स में से भी हमें ऑयल मिलता है. दूसरे भी कोई फूड आइटम होंगे तो उसमें से भी हमें ऑयल मिलता है. सो इसे हम क्रश करें, पेपर पर रखें. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर. और उसे फाड़ नहीं देना है. फूड आइटम रख के उसे धीरे से क्रश करना है. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? इसमें ऑयली पैच मतलब थोड़ा ऑयली हो जाएगा. जैसे कोई पेपर पे ऑयल गिरा है तो उसका जैसा टेक्सचर दिखता है वैसा आपको दिखेगा. Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? मीन्स जो पेपर है ना वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा उसमें से थोड़ा दिखेगा. सिंपल से पेपर में से अगर लाइट आप देखना चाहो तो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन इसमें अगर ऑयल लगा है ना तो उसमें से थोड़ी लाइट आप देख सकते हो. An oily patch on paper shows that the food item contains fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. तो पेपर में लेके जब हम इसे रब करेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा. क्या करेंगे? सैंपल लेंगे पेपर के ऊपर, उसे फोल्ड करके रब करेंगे या उसे क्रश करेंगे. जब उसे खोलेंगे तब उसमें ट्रांसलूशन स्पॉट मतलब इसमें थोड़ा ऑयली सब्सटेंस हमें दिखेगा. अगर ऑयली सब्सटेंस इसमें दिखे दैट मीन्स इट हैज़ फैट इन इट. दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट इन इट. What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? तो हो सकता है कि एक ही फूड आइटम से हमें मोर देन वन कंपोनेंट मिले, लेकिन कोई कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, किसी का अमाउंट कम होता है. और कोई कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें से ये एक भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होता नहीं. वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? See children, vitamins and minerals की टेस्ट है ना वो सिंपली हम जैसे बाकी के कंपोनेंट्स की करते हैं वैसे नहीं कर सकते. उसके लिए एक अलग टेस्ट होती है. फाइन, सो दैट वी कैन नॉट डू एट आवर होम. बट इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन ये सब हमें लेना ज़रूरी क्यों है, कैसे वो हम सबको यूज़फुल है, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. फाइन चिल्ड्रन, टिल देन बाय बाय.